Hello everyone, I hope you're doing well. Greetings to you. So, in today's video, we're going to talk about another topic of the same chapter, that is cell. Before starting with the chapter, I just want to show you this is the book okay, that we are referring, because as you all are aware that CBSE and NCERT changed the whole curriculum of 9th class. So this is the book that I'm sharing it with all of you because I want you to know that which book we are talking about. So this is the book, okay? And now before moving further, I'm just going to read from the book that we have discussed yesterday. So everyone, you can see an image here and I'm just reading it from my book for all of you because this is totally new for everyone, each one of you. So I want you to be very clear with each and every term. So, before starting with the chapter, there is a heading or there is a small introduction for the chapter. The name of the chapter is Cell, the Building Block of Life. It is widely accepted amongst the scientist community that life originated in water. That I already told you in the previous class. Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental condition rather than in ocean. कुछ लोगों ने बोला कि small water poles के अंदर life start हुई, ocean के अंदर start नहीं हुई. Okay, then hot springs are example of such environments. In India, the hot spring of Puga Valley in Ladakh maintain very high temperatures, nearly at the boiling point of water, even in a cold climate. These environmental conditions seem to be similar to those on the early Earth about 3.5 billion years ago. The organisms living in these hot springs are mostly heat-loving bacteria called thermophils, which are unicellular in nature. Thermophils के मतलब क्या है? Heat-loving bacteria. They are unicellular in nature. Please underline कर लेना अगर आपके पास book है तो. ठीक है, नहीं है तो जब आप लोगे आपको अब आइडिया है कि थर्मोफाइल्स क्या है, हॉट स्प्रिंग्स क्या है एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, देन साइंटिस्ट फ्रॉम द बिरला साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस लखनऊ, कहाँ पर है ये? लखनऊ में. ओके, स्टडीड दीज हॉट स्प्रिंग्स एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट formed rapidly around them. These deposits may have protected earlier organic molecules from harmful radiations and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell. तो इसी से ही ये लोगों ने, साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि इसी से ही हमारी फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो बनी है, जिससे हम सेल को डिफाइन करते हैं, जिससे सेल अपने आप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट. Next topic, next paragraph I can say, all living organisms are made up of cells. The cell represents the basic level at which life exists. Some organisms such as bacteria or yeast consist of only one cell. तब उनको हम क्या बोलते हैं? Unicellular और single celled organism. Example, amoeba. While other like plants, fish, birds or humans are made up of millions of cells. और उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मल्टीपल सेल इन देयर बॉडी और मोर देन वन सेल इन देयर बॉडी that work together. A group of similar cell performing similar functions. मैंने आपको कल बताया था, उनको हम क्या बोलते हैं? Tissues. Function form tissues. Different tissues are organized to form an organ, and several organs work together to form organ system, such as nasal pore, nasal cavity, trachea and lungs. These are all different types of organ, and when they come together they form a respiratory system. Even when cells are organized into tissue, organs and organ system, the cell remain the functional unit of structure and structural unit in all living organism. मैंने आपको बताया था what is the definition of cell? Cell is the fundamental structural and functional unit of life, because सारे function तो उस organ के अंदर cell ही कर रहे हैं, right? तो that's why the cell is the functional, fundamental and structural unit of life.
नेक्स्ट देखो, दिस मेक अस वंडर हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज़। अब इससे हमारे दिमाग में क्या क्यूरियोसिटी आई कि एक छोटा सा यूनिसेलुलर सेल कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है, कैसे वो ये सारे फंक्शंस कर पा रहा है, राइट। देन डू सेल्स लिव फॉर एवर और डू दे डाई। तो ये सब क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहे हैं अब कि सेल क्या हमेशा जिंदा रहते हैं या वो मर जाते हैं। वट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। Okay, in this chapter we will explore the answers to these questions as we enter the fascinating world of cells. तो ये हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाउ टू स्टडी सेल्स। अब हम सेल को स्टडी कैसे करेंगे, हम सेल को स्टडी किसकी हेल्प से करेंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमारे फ्रेम में आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल डिस्कवर किया किसके ऊपर, डेड कॉर्क के ऊपर। उन्होंने प्लांट की जो बार्क होती है, जो ट्रंक होता है उसकी जो बार्क होती है उसको कलेक्ट किया और उन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था। ऑब्वियसली वो बहुत प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था एट दैट टाइम। उन्होंने जब उसमें स्टडी किया तो उनको ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे जिनको उन्होंने बोला हनीकॉम्ब शेप बोला और फिर उन्होंने इसको नाम दे दिया सेल्स, ठीक है। बट ये जो उन्होंने चेक किया ये किस पे देखा, डेड सेल्स के ऊपर, राइट। तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल डिस्कवर किए, बट उन्होंने कौन से सेल डिस्कवर किए, डेड सेल्स, राइट। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम एंटनी वॉन ल्यूवैनहुक पे। एंटनी वॉन ल्यूवैनहुक की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो क्या थे, वो मर्चेंट थे। वो क्या करते थे, वो कपड़े सीलते थे और उनको अलग अलग जगहों पर उसको सेल आउट करते थे। पर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस ह्यूमन बीइंग भी थे, वो साइंटिस्ट नहीं थे, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद से अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करना। उन्होंने माइक्रोस्कोप बेसिकली क्यों बनाया था, अपने फैब्रिक की क्वालिटी चेक करने के लिए कि उनका जो फैब्रिक है वो अच्छी क्वालिटी का है, जो लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो देखते देखते वो लोग अलग अलग चीज़ें देखने लग गए। फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओशन वाटर, रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, इन सबको ऑब्जर्व किया। तो जब उन्होंने पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया तो उसमें उनको क्या मिला, उनको लिविंग सेल्स मिले, जिनको अब हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज, जो हमारे आसपास सराउंडिंग में हर टाइम अवेलेबल होते हैं। तो उससे पहले बेटा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। जब सेल्स डिस्कवर नहीं हुए थे, जब लिविंग सेल डिस्कवर नहीं हुए थे और हमें नहीं पता था कि सेल इतने छोटे होते हैं दैट वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज, एट दैट टाइम पीपल थॉट व्हेन समवन फॉल्स सिक and when someone falls sick, तो what happened, they start to think that God curse you, ने रात को कोई विच आई थी, someone possesses you, and all these types of story were very very common कि आपने कुछ गलत काम किया, like something like that. But then later on क्या, जब ये सेल्स डिस्कवर हो तो हमें पता चला हम बीमार क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बी इट अ बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, प्रोटोजोआ, ये सब चीज़ें हमें क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। अभी भी मेरी सराउंडिंग में बहुत सारे होंगे, आई एम इनहेलिंग देम, बट माई म्यूकस नोज, जो म्यूकस है नोज के अंदर, वो उसको प्रिवेंट कर रहा है टू गेटिंग एंटरिंग इनटू द बॉडी। एंड वी हैव WBCs ऑल्सो, दे आर फाइटिंग कंटिन्यूअसली विद दोज टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटनी वॉन ल्यूवैनहुक ने लिविंग सेल डिस्कवर किए एंड फादर डिस्कवरी ऑफ सेल किस, डेड सेल्स की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट हुक ने। एंड फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन है, एंटनी वॉन ल्यूवैनहुक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अपनी बुक में कहीं पे भी मेंशन कर लेना। अब क्या हुआ, धीरे धीरे माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हुई, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप सब ने अपने स्कूल्स में लैब में देखे हैं, जिसके अंदर लाइट जलती है एंड लाइट के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है, हमें मैग्नीफाई होकर इमेज दिखती है, दैट इज आवर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। फिर हमने धीरे धीरे और एडवांसमेंट करी एंड 1940s के अराउंड हमारे पास आ गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन की बीम से, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी चीज़ के ऊपर पड़ते हैं और उसके इमेज को क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम सिर्फ लिविंग स्पेसिमेन देख सकते हैं, ठीक है, हम उसमें डेड स्पेसिमेन नहीं देख सकते, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम माइक्रोस्कोप की स्टडी करेंगे। अब हमने देखा बेटा, जो हमारी ओवरी होती है, ओवा होता है, जो एग होता है ओवरी के अंदर, ठीक है, उसका जो साइज होता है वो होता है 100 माइक्रोमीटर एंड हमारी आइज 100 माइक्रोमीटर इतना ही देख सकती है, मतलब ये हमारा मिनिमम है, इससे छोटी चीज़ हम नहीं देख सकते। उसके लिए फिर वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में। इतनी और इससे बड़ी सारी चीज़ें हमें विजिबल होती हैं,
ये आप लिख लेना, ये हमारी रेंज है, ये हमारी मिनिमम रेंज है जिसको हम देख सकते हैं विद द नेकेड आइज। इससे छोटा हम कुछ भी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। तो हाउ टू स्टडी सेल्स, what do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate and distant? Imagine two tiny dots. अब हमें क्या करना है, देखो इसको imagine करते हैं, two tiny dots, okay, drawn on a piece of paper. As the dot are moving closer, there comes a point at which they can no longer be as separate. अभी देखो ये आपको separate दिख रही है, जैसे जैसे मैं इसको और पास बनाऊंगी, ठीक है, फिर मैं एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एक दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी या इतनी पास होंगी कि आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉट्स, टू डिफरेंट डॉट्स आर देयर। तो ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। तो व्हेन व्यूड फ्रॉम, आपको पता है हम सब ने फिजिक्स में पढ़ा है 25 सेंटीमीटर हमारी मिनिमम रेंज होती है रीडिंग की, राइट। इससे दूर, इससे ज़्यादा पास आएंगे तो हमें दिखेगा नहीं, हमारी आंखों पे जोर पड़ेगा, राइट। सो या प्लीज़ अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना, व्हेन व्यूड फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, 2 points separate by about 0.1 micrometer can be seen as distant, otherwise they appear as a single point. This is called the limit of resolution of the human eye, which is 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये बेटा सॉरी, ये मैंने गलती से, ये माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप इस टेबल में देखोगे साइड में, तो मैंने अभी आपको बताया 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। 100 माइक्रोमीटर से ऊपर ऊपर देखो हमें सब कुछ विजिबल है, और 100 माइक्रोमीटर से जो भी छोटी चीज़ है वो हमें विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 100 माइक्रोमीटर। अब 100 मिलीमीटर तो हमें इजीली विजिबल होगा, राइट। और 0.1 नैनोमीटर तो बहुत ही छोटा हो गया, ये हम नहीं देख सकते। तो इससे छोटी चीज़ हम नहीं देख सकते, बट इससे बड़ी चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, ध्यान से इसको अंडरलाइन करो। व्हेन व्यूड फ्रॉम अबाउट 25 सेंटीमीटर, 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अबाउट 0.1 मिलीमीटर, अगर इनके बीच में 0.1 मिलीमीटर का भी डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कैन बी सीन एज डिस्टेंट, तो हमें ये अलग अलग दिखेंगे। इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज दे अपीयर एज अ सिंगल पॉइंट। तो इस लिमिट को आप क्या बोलोगे, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या बोलोगे, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, व्हेन देयर इज अ गैप ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर between the two things, we can separate them and that is your limit of resolution. पर अगर इससे ज़्यादा छोटा होगा तो we cannot see it. मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर है, ठीक है। माइक्रोमीटर ये है, ये हमारा नैनोमीटर है। मिलीमीटर आप लिखोगे ऐसे mm, माइक्रोमीटर लिखोगे आप ऐसे, ठीक है, और नैनोमीटर लिखोगे आप ऐसे। तो ये आपका मिलीमीटर है। अगर 0.1 मिलीमीटर जितना सेपरेशन है तब आप उसको देख सकते हो, दैट इज योर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अगर उससे कम हुआ तो आप उसको नहीं देख सकते, सिंपल एज दैट। आई होप आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्लियर है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अ सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आईज। दिस रेज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल that are much smaller than the limit of resolution of the human eye. You have learned about, अब यहाँ पे हमारा क्या चीज़ आ गई जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, माइक्रोस्कोप, राइट। अभी तक हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे इन्हीं का रोल आता है, क्योंकि वो इमेज को क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। तो फर्स्ट देखो, a convex lens or the combination of lens that is an objective lens and an eyepiece are used for the magnification of an object to make it appear larger. Okay, Robert Hooke was the first person to observe a cell in 1665. Underline everyone. Using a self-designed microscope capable of 200 to 300x मल्टी मैग्निफिकेशन, उसने इसको इतना मैग्नीफाई किया, ठीक है। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ही ऑब्जर्व्ड स्मॉल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट and call them cells.
इन स्कूल लेबोरेटरीज लाइट माइक्रोस्कोप, और अब उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आर यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यूजिंग डिफरेंट objective lenses, that is 10x and 40x, to achieve better magnification and resolution under visible light. Explore different parts of a microscope in your school laboratory and use it to observe fine structure of various material. Under the microscope you will see a magnified image of an object. Can you estimate its actual size? ओके अब ये वाली जो एक्टिविटी है बेटा, ये पूरी एक्टिविटी विद द माइक्रोस्कोप आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी. मैंने आपके लिए रीड क्यों किया आपको पता है, बिकॉज ये बिल्कुल ही नई बुक है बेटा, एवरीथिंग इज चेंज, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस वाइल रीडिंग इट. और बहुत सारी नई चीज़ें ऐड ऑन है जो आपकी पुरानी बुक में नहीं है. तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.